یہاں بات کریں فیصل آباد میں ہلکی بوندا باندی سے موسم خوشگوار ہو گیا۔ بوندا باندی اور ٹھنڈی ہواؤں سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ ادھر جنگ میں تیز آندھی کے بعد موسلادھار بارش، درجہ حرارت کم ہو کر 22 ڈگری تک آ گرا۔ مزید بارش متوقع ہے، جبکہ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور گرد نواح میں بھی گرج چمک کے ساتھ بارش، تیز ہوائیں چلنے اور موسلادھار بارش سے موسم خوشگوار ہو گیا ہے۔ ٹوبہ اور جنگ میں 58 فیڈرز ٹرپ کر گئے، دونوں شہر اندھیرے میں ڈوب گئے ہیں۔ شورکوٹ میں بھی آندھی اور بارش سے بجلی کا نظام معطل ہو چکا ہے۔ اور یہاں آپ کو بتائیں، پنجاب میں جنرل الیکشن کاغذات نامزدگی جمع کرانے کا وقت ختم۔ فیصل آباد ڈویژن میں امیدواروں نے کاغذات نامزدگی ریٹرننگ افسران کو جمع کرا دی۔ پنجاب میں عام انتخابات کا مارکا۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ خان نے جڑاوالا پی پی 100 سے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ طلال چودھری کی مشاورت سے کاغذات نامزدگی جمع کرائے گئے۔ رانا ثناء اللہ کے وکیل ملک جاوید اوان ایڈوکیٹ نے ریٹرننگ آفیسر شوکت سندھو کو کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ جنگ میں صوبائی اسمبلی کی سیٹوں پر کاغذات نامزدگی وصول کرنے کا عمل مکمل۔ صوبائی اسمبلی کی 7 نشستوں پر 137 امیدواروں کی جانب سے 155 کاغذات نامزدگی جمع کروائے گئے۔ پی پی 124 سے محمد خان، طاہر عباس، سید محمد عباس، محمد تیمور خان، نیلم سیال، سردار الحاج غلام احمد، آصف علی خان نے کاغذات جمع کروائے۔ پی پی 125 سے سید نور سلطان، علی نواز بھروانہ، مہر محمد نواز، خرم عباس سیال، بابر علی خان، مہر محمد اسلم، غلام بی بی، محمد حیدر علی بخاری، محمد اشرف، مخدوم زادہ سید اسد حیات نے کاغذات جمع کرائے۔ پی پی 126 سے آصف علی شاہد، مسرور نواز، محمد یعقوب شیخ، احمد حسن انصاری، شیخ محمد اکرم، شیخ فواز اکرم، شیخ شراز اکرم نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پی پی 127 سے عبد الوحید، سید اون عمران، محمد آصف معاویہ اور عمر دراز نے کاغذات جمع کرائے۔ پی پی 128 سے سائمہ اختر، آصف کاٹھیا، عبد الغنی، خالد غنی اور مادھو لال حسین نے کاغذات جمع کرائے۔ پی پی 129 سے عابد حسین، امیر عباس، نظر عباس، شہباز احمد نے کاغذات جمع کرائے۔ پی پی 130 سے میاں محمد اعظم، میاں معظم اکرم اعظم چیلا، میاں مدثر اعظم چیلا، منظر عباس، فیصل حیات، اذکار وباب، فیصل حیات اور احسن اللہ نے کاغذات جمع کرائے۔ مندری میں بھی کاغذات نامزدگی جمع کروانے کا عمل مکمل۔ پی پی 103 میں 25 اور پی پی 104 سے 22 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ سابق وفاقی وزیر رانا فاروق سعید خان، بلال فاروق خان، سابق ایم پی اے راؤ کاشف رحیم، سابق ایم پی اے عادل پرویز گجر، عارف محمود گل اور افتخار رسول گھمن شامل ہیں۔ پنجاب میں عام انتخابات ریٹرننگ آفیسر مخصوص نشستوں کی اسکروٹنی 18 مارچ سے شروع کریں گے، جو کہ 22 مارچ تک مکمل کی جائے گی۔ مخصوص نشستوں کے لیے صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کو ریٹرننگ آفیسر تعینات کیا گیا ہے۔ دوسری جانب ٹوبہ ٹیک سنگھ میں صوبائی اسمبلی کے عام انتخابات کے لیے گہما گہمی، 6 حلقوں سے 139 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ ٹوبہ میں کاغذات نامزدگی جمع کرانے والے امیدواروں کی فہرست جاری، 6 حلقوں سے 139 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پی پی 118 گوجرا سے بلال اصغر، امینہ بلال، اقبا وڑائچ، حسام علی، اسد زمان چیمہ، اظہر زمان، فرخندہ امجد۔ پی پی 119 سے خالد بشیر، حسام علی، عمر افتخار، محمد کاشف نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پی پی 120 سے رمضان پرویز، سعید احمد، امجد علی، اشفاق احمد، طاہر پرویز انجم، عمران اشرف، ارشد جاوید اور حمیرہ گل، جبکہ پی پی 121 سے رمضان پرویز، خاور شیر گادی، ایوب گادی، جاوید اکرم اور خالد نواز نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ پی پی 122 کماریہ سے آصف کاٹھیا، ساجدہ عباس کاٹھیا، ریاض خان، آشفا ریاض، نازیہ راہیل انور، نوید اختر، محمد عثمان، اعجاز انور کے نام شامل ہیں، جبکہ پی پی 123 پیر محل سے محمد شفیق، سونیا رضا، قطب علی شاہ، محمد لطیف نے کاغذات جمع کروائے۔ چنیوٹ کے حلقہ پی پی 94 سے 17 امیدواروں نے، جبکہ پی پی 95 سے 16 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرائے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرانے والوں میں سابق ایم پی اے سید حسن مرتضی، الیاس چنیوٹی، میر خالد، شوکت تھیم، اقصی لالی، طاہر نواز، چودھری اسلام خان شامل ہیں۔ سید نور الحسن شاہ، آفتاب ہرل، محمد عبد القیوم مٹھو، غلام قطب الدین سیالوی، حسین جپا، بشیر جپا نے بھی کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔ کاغذات نامزدگی کی اسکروٹنی کا عمل 22 مارچ سے شروع ہوگا۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 108 میں کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل، 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے۔
قومی اسمبلی کے حلقہ 108 میں کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل، 5 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کروا دیے۔ قومی اسمبلی کے حلقہ 108 میں میاں فاروق حبیب کا مقابلہ سابق ایم پی اے میاں طاہر جمیل کریں گے۔ این 108 سے نون لیگ کے عابد شیر علی نے کاغذات جمع نہیں کرائے۔ نون لیگ سے سابق ایم پی اے میاں طاہر جمیل نے عابد شیر علی کے ہمراہ جا کر کاغذات جمع کرائے۔ پی ٹی آئی، نون لیگ اور تحریک لبیک سمیت کل 5 امیدواران میدان میں موجود ہیں۔ تحریک لبیک کے ساجد قادری، خرم شہزاد اور ضمیر حسین بھی شامل ہیں۔ این 108 میں پولنگ 30 اپریل کو ہوگی۔ این 108 سے 17 اکتوبر 2022 کو عمران خان جیتے تھے۔ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول کی مصنوعات کی قیمتوں میں 13 روپے کا اضافہ۔ قیمتوں میں اضافے پر عوام بلبلا اٹھے۔ مہنگا تیل مزید مہنگا ہو گیا، مہنگائی کے ستائے عوام کو کوئی ریلیف نہ مل سکا۔ وفاقی حکومت نے ایک بار پھر پیٹرول بم گرا دیا۔ پیٹرول 5، ہائی اسپیڈ ڈیزل 13 اور مٹی کا تیل تقریباً 2.5 روپے مہنگا کر دیا گیا۔ پیٹرول کی نئی قیمت 272 روپے لیٹر ہو گئی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہائی اسپیڈ ڈیزل کی قیمت 13 روپے اضافے کے بعد 293 روپے فی لیٹر ہو گئی۔ مٹی کا تیل 2 روپے 56 پیسے مہنگا ہو کر 190 روپے 29 پیسے لیٹر ہو گیا۔ قیمتوں میں اضافے پر عوام بلبلا اٹھی، کہتے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے جسے گزارا کرنا مشکل ہو گیا ہے۔ ਮਹਿੰਗਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪੈਟਰੋਲ ਦੀ ਹਰ ਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੈ ਦੇ ਕੇ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਹੀ ਆਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚੇ ਘਟਾਣੇ, ਆਪਣੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਘਟਾ ਲੈਣ, ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਘਟਾ ਲੈਣ। جنگ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ پر شہری پریشان، سیاسی جماعتوں کی وفاقی حکومت پر شدید تنقید۔ جماعت اسلامی نے اضافہ فوری واپس لینے کا مطالبہ کر دیا۔ ڈاکٹر عبدالجبار خان کہتے ہیں عالمی منڈی میں پیٹرول گزشتہ ہفتے سے کم ترین قیمت پر ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ شہریوں کے ساتھ مذاق ہے، عوام پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے۔ عام بندے کا جو پیٹرول جو پچھلے 15 دن 5 روپے کم کیا گیا تھا وہ دوبارہ 5 روپے بڑھا دیا گیا اور ڈیزل کو 13 روپے۔ ملازم پیشہ طبقہ وہ پہلے ہی بیچارہ پریشان ہے، اس کے گھر کا خرچہ نہیں چل رہا اور اوپر سے ہم نے یہ ڈیزل اور پیٹرول بڑھا دیا ہے۔ شعبہ ٹیکسنگ کی عوام بھی پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بلبلا اٹھی، کہتے ہیں مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے، 2 وقت کی روٹی بھی مشکل ہو چکی، حکمران ہمارے حالات پر رحم کھائیں۔ ਹਾਲਾਤ ਬੜੇ ਅੱਗੇ ਖਰਾਬ ਹੋਏ ਆ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 5 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਸਸਤਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਫੇਰ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿੱਥੇ ਜਾਈਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਸੇ ਜਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰ ਨਾ ਲਿਆ। پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بھوانا کے شہری بھی پریشان۔ اوپن مارکیٹ میں مہنگائی کا طوفان آئے گا، مہنگائی اور بے روزگاری میں پسی عوام کو بار بار ختم کرنے کی بجائے ایک بار ہی مار دیا جائے۔ حکمران اپنی عیاشیوں کے لیے ہم سے جینے کا حق چھین رہے ہیں۔ عوام ستی ہوندی ہے، صبح پیٹرول ودیا پیا ہوندا ہے، کی تماشا بنیا ہے، حکومت کی شاہ ہے۔ آئی ایم ایف تو معاہدے کر کے دے روز کوئی نہ کوئی عوام تے پیٹرول پمپ گرا دیندی ہے۔ ہن جی کوئی پھر بجلی دا آپشن آ رہا ہے 3 روپے بتاؤ ہیں، یہ کی کروں ساڈے نال۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر شہریوں نے غم و غصے کا اظہار کیا۔ شہریوں کا کہنا ہے مہنگائی نے پہلے ہی کمر توڑ دی ہے، پیٹرول کی قیمت میں اضافے سے مزید بوجھ پڑے گا۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں پھر سے اضافہ، تیل مہنگا ہونے سے سفر مزید مہنگا ہو گیا، سارا بوجھ غریب پر آ گیا۔ تیل مہنگا ہونے سے سفر مزید مہنگا ہو گیا، سارا بوجھ غریب پر آ گیا۔ جنگ میں پبلک ٹرانسپورٹ کے کرایوں میں 5% تک کا اضافہ کر دیا گیا۔ دیگر شہروں کو جانے والی گاڑیوں اور اربن ٹرانسپورٹ مالکان نے کرایہ بڑھا دیا۔ پبلک ٹرانسپورٹ اور ذاتی گاڑی پر سفر کرنا ناممکن ہو گیا۔ جنگ سے فیصل آباد کا کرایہ 300 سے بڑھ کر 320 روپے ہو گیا۔ جنگ سے لاہور کا کرایہ 1200 سے بڑھ کر 1350 روپے تک کر دیا گیا۔ ملتان کا کرایہ 960 سے 980 روپے، لیا کا کرایہ 450 سے بڑھ کر 470 روپے ہو گیا۔ جنگ سے راولپنڈی کا کرایہ 1700 سے بڑھ کر 1750 روپے ہو گیا۔ گوجرا کا کرایہ 240 سے 250، ٹوبا کا کرایہ 200 سے بڑھ کر 220 روپے ہو گیا۔ جنگ سے شور کوٹ کا کرایہ 320 سے 330 روپے کر دیا گیا۔ بڑھتے کرایوں پر شہری تل ملا اٹھے۔ 750 روپے آج تقریباً راتی آئے 1100 روپے، آج 100 روپے پھر مہنگا ہو گیا۔ کتنے پیسے آپ نے کرائے میں دیے آج؟ 1200 روپے دی۔ فیصل آباد جاتے تھے تو وہاں 200 روپیہ پے کر کے جاتے تھے، اب 250 پے کرنا پڑتا ہے۔ لاہور کے لیے پہلے جاتے تھے 1400 روپیہ پیسے پے کرنا ہوتا تھا، اب 1500 روپیہ ہو گیا زیادہ۔ شہریوں نے حکومت سے ٹرانسپورٹ مافیا کے خلاف ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ ماہ سیام کی آمد چنیوٹ میں یوٹیلیٹی سٹورز پر سستے گھی، آٹے اور دالوں سمیت دیگر اشیاء کی شدید قلت، خریدار پریشان ہو گئے۔ رمضان کی آمد سے قبل چنیوٹ کے یوٹیلیٹی سٹور پر سبسڈائزڈ اشیاء کا کال پڑ گیا۔ سستے گھی، آٹے اور دالوں سمیت دیگر اشیاء غائب ہو گئیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ یوٹیلیٹی سٹور پر آٹا، گھی اور دالوں سمیت بنیادی اشیاء بھی نہیں مل رہی۔ پورے شہر میں پھری ہوں، جس کے پاس جاتا ہوں وہ کہہ رہا ہے، جس کے پاس ہوتا ہے بھی وہ دے بھی نہیں رہا ہے۔ آٹا لو تو گھی نہیں ملتا، گھی لو تو آٹا نہیں ملتا، چینی لو تو چینی نہیں ملتی، کیا کریں بتاؤ، ایسے حالات ہو چکے ہیں ہمارے ملک۔ شہریوں نے مزید کہا کہ یوٹیلیٹی سٹور صرف نام کے سستے ہیں، مزدور لوگ ہیں، اشیاء کی عدم دستیابی کے باعث مجبوراً مہنگے داموں مارکیٹ سے اشیاء خریدنا پڑتی ہیں۔ ایسا حالات کر دیا ہم نے، ملک ہم نے لیے ایک تھیلی لیے، اب یہ میری چائے کی پتی ہے کہ لیے
अभी हमने 9 से 1000 रुपये का बिल बना, बताओ मैं आटा पूरा करूँ अपने बच्चे के लिए, खाना पूरा करूँ, मैसर करूँ, क्या मैं काम करूँगा, आटा लूँ मैं। शहरियों ने वफाकी हुकूमत से यूटिलिटी स्टोर पर सब्सिडाइज रेट की अशिया की फौरी फराहमी का मुतालबा किया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41 चनियोट। बात करें आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। हज दरखास्तों की वसूली का अमल आज से शुरू। वजारत हज ने रवां साल के लिए सरकारी कोटा 89,605 मुकर्रर कर दिया। आज़मीन हज के लिए खुशखबरी। हज दरखास्तों की वसूली का अमल शुरू। वजारत हज ने रवां साल के लिए सरकारी कोटा 99,605 मुकर्रर कर दिया। हज दरखास्तें 31 मार्च तक वसूल की जाएंगी। शहरी वजारत मजहबी अमूर की जानिब से 13 नामजद बैंकों में हज दरखास्त दे सकते हैं। नेशनल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब समेत 13 नामजद बैंकों में हज दरखास्तें दस्तयाब होंगी। हज दरखास्तों की कुरंदाजी 6 अप्रैल को होगी। रवां साल आज़मीन हज को मीना और मुज़दलिफ़ा में ट्रेन सहूलत मैसर होगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए स्पॉन्सरशिप हज स्कीम मुतारिफ करवा दी गई। रवां साल 1,79,210 पाकिस्तानी फरीज़ हज अदा कर सकेंगे। आज़मीन हज के लिए उम्र की कोई हद नहीं। आगे बढ़ते हुए बात करें, पीटीआई के 9 साबिक वज़रा और एमपीए एंटी करप्शन के रेडार पर आ गए। तरक्याती मंसूबों में खुर्द-बुर्द और सरकारी असामियों पर भर्तियों के लिए रिश्वत लेने के इल्जामात पर 17 मार्च को तलब कर लिया। पीटीआई के 9 साबिक वज़रा और एमपीए एंटी करप्शन के रिडार पर आ गए। तरक्याती मंसूबों में खुर्द-बुर्द और सरकारी असामियों पर भर्तियों के लिए रिश्वत लेने के इल्जामात पर 17 मार्च को तलब कर लिया। मुतल्लिका सरकारी महकमों के अफसरान और ठेकेदारों को भी रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया गया। एंटी करप्शन हुकाम के मुताबिक पीटीआई रहनुमाओं ने सड़कों की तामीर और मरम्मत की मद में 25 से 30 करोड़ रुपए मुबैना तौर पर खुर्द-बुर्द किए हैं। एंटी करप्शन ने साबिक एमपीए चौधरी आदिल परवेज गुजर, साबिक सूबाई वजीर अजमल चीमा को तलब किया है। साबिक सूबाई वजीर चौधरी जहीरुद्दीन, साबिक एमपीए मलिक उमर फारूक, साबिक एमपीए चौधरी अली अख्तर भी तलब होने वालों में शामिल हैं। साबिक सूबाई वजीर ख्याल कासरू, साबिक एमपीए मियां वारिस, साबिक एमपीए मोहम्मद लतीफ नजर, साबिक एमपीए शकील शाहिद भी तलब। एंटी करप्शन पंजाब की जानिब से 9 साबिक वज़रा और एमपीएस को 28 मार्च को तलब किया गया है। एक्सियन हाईवे सरमद अख्तर लंगड़ियाल को एंटी करप्शन ने 17 मार्च को तलब कर लिया। हुकाम के मुताबिक तमाम साबिक वज़रा और एमपीएस ने मुश्तरका तौर पर एग्जेक्टिव इंजीनियर हाईवे सरमद अख्तर लंगड़ियाल की पोस्टिंग के लिए मरासला लिखा। फैसलाबाद में बेनजीर इनकम सपोर्ट का आगाज सिर्फ नाकाम रह गया है। 3 माह बाद भी खवातीन खास चंद हजार रुपए के लिए लंबी लंबी कतारों में लगने पर मजबूर हो गए। फैसलाबाद बेनजीर इनकम सपोर्ट का आगाज सिर्फ नाम का रह गया। 3 माह गुजर गए, बीआईएसपी की रजिस्ट्रेशन अवाम को खवार करने लगी। चंद हजार रुपए के लिए खवातीन लंबी लंबी कतारों में अपने छोटे बच्चों को लेकर इंतजार करने पर मजबूर हैं। खवातीन का कहना था कि सुबह 6 बजे से बैठकर इंतजार कर रहे हैं, ना कोई सुनता है और ना कोई मालूमात फराहम की जाती हैं। ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਵਾਪਸ ਜਾਈ ਜਾਂਦੇ, ਸਾਡਾ ਅੰਦਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਡੇ ਲਾਲਾਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਛੱਡ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ पैसे नहीं लवा रहे, जलील हो रहे हैं ਅਸੀਂ। खवातीन ने मजीद कहा कि इंदराज कराने के लिए बैठे हुए हैं, सिस्टम स्लो है कहकर वापस भेज देते हैं। एक नहीं 6 बार चक्कर लगा चुकी हूँ। इतनी महंगाई में किराया भरकर आते हैं और कोई बात तक नहीं सुनता। सुबह 6 बजे के हम आए हैं, ये इधर यही कह रहे हैं कि कभी सिस्टम बंद है, कभी खाना खा रहे हैं, ये ऐसे ही बस धूप में हम चले जाते। आप हमें 6 मरतबा इधर आ गए हैं, कोई मसला नहीं है हमारा हो रहा। मैं अपना अंदराज करवाना आई हाँ ਤੇ ਮੈਡਮ ਨੇ ਟੋਕਨ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੱਖਿਆ ਮਾਸਕ ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਜੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਬੈੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਜੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਬੈੰਦੇ ਤਾਂ ਬਿਜਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ। बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का वजीफा गरीबों के लिए परेशानी का बायस बन गया। रकूम की वसूली के लिए घंटों लंबी कतारों में लगना इनका मुकद्दर बन गया। खवातीन ने अरबाब इख्तियार से नोटिस लेने और मसाइल हल करने का मुतालबा किया है। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान ताज के साथ मरीम रजा, सिटी 41 फैसलाबाद। फैसलाबाद डिवीजन में कैप्टो पावर प्लांट्स के जरिए बिजली पैदा करने वाले सैकड़ों सनती सार्फिन महकमा सुई गैस के करोड़ों रुपए की नादहिंदा निकले हैं। गैस से बिजली बनाने वाले कारखाने अरबों रुपए की गैस मुफ्त में इस्तेमाल कर गए। फैसलाबाद डिवीजन में कैप्टो पावर सुई नॉर्दर्न के 1 अरब से जायद की नादहिंदा। बड़े सनती यूनिट्स ने बिजली के करोड़ों के बिल बचाने के लिए गैस पर बिजली बनाई, मगर सुई नॉर्दर्न को बिल अदा न किए। नादहिंदा सनती यूनिटों की जिम्मे 5 साल तक के वाजिबात वाजिबुल अदा हैं। SNGPL ने नादहिंदा कैप्टो पावर्स के कनेक्शन मुनक़ता करने की तैयारी शुरू कर दी। नादहिंदगान के कनेक्शन मुनक़ता करने के लिए नोटिस जारी कर दिए गए। महकमा सुई गैस हुकाम के मुताबिक नादहिंदा कैप्टो पावर्स के कनेक्शन मुनक़ता करके रिकवरी का अमल यकीनी बनाया जाएगा। दर्जनों केसेस में अदालती स्टे ऑर्डर्स की वजह से रिकवरी ज़ेरे इल्तवा है। पारा चढ़ने लगा, पानी की किल्लत भी बढ़ने लगी। चनियोट में साफ पानी नायाब। 2019 में वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा लटक गया। मोहल्ला गफूराबाद, मस्कीनपुरा समेत दिगर आबादियां बूंद बूंद को तरसने लगी हैं।
चंडियोट में दर्जा हरारत और गर्मी की शिद्दत बढ़ गई, मगर शहरियों की प्यास बुझाने के लिए साल 2019 में अंदरून शहर पीने के साफ पानी की फराहमी का शुरू होने वाला वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट का मंसूबा लटक गया। अंदरून शहर लगाए जाने वाले 5 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स में से 3 ताहाल नहीं लगाए जा सके। हजारों नफूस पर मुश्तमिल महल्ला गफूराबाद, लाहौरी गेट, महल्ला उस्मानाबाद, खैराबाद, मिस्कीनपुरा समेत दीगर कई आबादियों के मकीन पीने के साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए हैं। ना तो फिल्टर है, ना लानी ना देनी, गंदे पानी पी पी के बंदे मरते पे ते बीमार होंदे पे। होर इत्थे कोई भी नहीं, मतलब ना आउंदे ने रोज वेख के चले जांदे। साडा ये मुतालबा है जी, पानी का कुछ हल हो जाए तो बेहतर है जी। इलाका मकीनों का कहना था कि सीवरेज के बायस जमीनी पानी पीने के काबिल नहीं रहा, दूर दराज से पीने के लिए साफ पानी भरकर लाते हैं। मकीनों ने मजीद कहा कि नाकिस पानी पीने से लोग बीमार हो रहे हैं। शहरियों ने हुकूमत से पीने के साफ पानी की फराहमी का मंसूबा मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन मोहम्मद औरंगजेब के साथ बाबर मुनीर, सिटी 41, चंडियोट। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के हवाले से अहम खबर। डिजिटल मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी, कंपनी पर बोझ बनने वाले मुलाजमीन नौकरी से फारिग कर दिए। हमने एक जामिया प्लान तरतीब दिया है मॉनिटरिंग का। इसमें हमने सबसे पहले जो गोस्ट वर्कर है वो आइडेंटिफाई किए हैं, और हमने फर्स्ट गो में तकरीबन 35 वर्कर्स आइडेंटिफाई किए थे जिन्हें मंडी से इंगेज कर दिया। और उसके बाद जो हमने ऑपरेशन साइट थी वहाँ से दोबारा फिर से मॉनिटरिंग के ज़रिए कहा गया कि हिदायत दी गई कि जितने भी गोस्ट वर्कर उन्हें आप आइडेंटिफाई करने बताएँ। और अगेन जो है ऑलमोस्ट 69 वर्कर्स उन्हें आइडेंटिफाई किए और हमने उनको भी डिसंगेज कर दिया। इसमें कुल मिला के जो 107 वर्कर्स हैं हमने डिसंगेज कर दिए। ये कंपनी में बॉस भी थे और इससे तकरीबन 30 लाख रुपया जो महाना की आमदन है वो बचत है वो कंपनी को मिलेगी। इसके अलावा हमने जो है ना वो गाड़ियों की बेहतरीन यूटिलाइजेशन के लिए एक डिजिटाइज मैकेनिज्म शुरू किया है। इसमें तमाम गाड़ियों की जो है वो ट्रैक्टर्स हमने ठीक करवा ली हैं और हम एक डिजिटाइज रूट डिज़ाइन कर रहे हैं, और जिसके तहत हमें पता चल सकेगा कि किस रूट पर गाड़ी ने कितना मूव करना है, किस स्पीड से मूव करना है, वहाँ कितने कंटेनर्स पड़े हुए हैं, और तमाम कंटेनर में जियो टैग होंगे, ताकि गाड़ी जब हम जाकर रुकेगी हमें साफ मैसेज मिल जाएगा कि गाड़ी वहाँ कंटेनर के पास पहुँच गई है, कंटेनर खाली कर दिया गया है। अगर गाड़ी की कंटेनर मिस करेगी हमें वो भी पॉपअप हो जाएगा कि ये गाड़ी कंटेनर मिस कर गई है। हम उसको फिर वर्चुअली भी देख लेंगे और जो है ना उसको हम फिजिकली भी उसको हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। और इसके अलावा जो लैंडफिल साइट है उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान है, ताकि जो गार्बेज कलेक्शन है उसे सिस्टमाइज़ किया जाए। वे ब्रिज हमने इफेक्टिव कर दिए तमाम के तमाम। प्रोफेसर डॉक्टर ज़िले-हुमन नासली जीसी विमेन यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर मुकर्रर। गवर्नर पंजाब की मंजूरी से हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डायरेक्टर एकेडमिक्स गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद डॉक्टर ज़िले-हुमन नासली की बतौर प्रो वाइस चांसलर तकर्रुरी कर दी गई। प्रोफेसर डॉक्टर ज़िले-हुमन नासली को 3 साल के लिए प्रो वाइस चांसलर नामजद किया गया है। गला मंडी फैसलाबाद का इलेक्शन इंसाफ ग्रुप ने सख्त मुकाबले के बाद मैदान मार लिया है। फैसलाबाद गल्ला मंडी में 7 साल बाद इलेक्शन का मार्का हुआ, जिसमें इंसाफ ग्रुप ने सख्त मुकाबले के बाद 30 साल से मंडी की जिम्मेदारियां संभालने वाले इत्तेहाद ग्रुप को शिकस्त दे दी। इत्तेहाद ग्रुप की जानिब से इंसाफ ग्रुप को जीत की मुबारकबाद दी गई। जीत के ऐलान पर इंसाफ ग्रुप के सपोर्टर्स ने खूब हल्ला गुल्ला किया। इंसाफ ग्रुप के सदर हाजी मंजूर कादिर ने 271 वोट हासिल किए। सीनियर नायब सदर सईद अहमद ने 226, जबकि जनरल सेक्रेटरी के उम्मीदवार महमूद रहमानी ने 295 वोट हासिल किए। इलेक्शन में फतह पर सपोर्टर्स ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। गला मंडी के इलेक्शन जीतने के बाद इंसाफ ग्रुप ने ताजरों और मंडी के फलाही काम जारी रखने के अज़्म का इजहार किया। कैमरामैन वहीद महमूद और जुबैरुल्लाह के साथ फजील अहमद, सिटी 41, फैसलाबाद। फैसलाबाद में बर्क एसोसिएशन की जानिब से आज कौंसिल में सालाना फनकारों के इलेक्शन चेयरमैन के उम्मीदवार शाहिद मलिक 97 वोट लेकर कामयाब हुए। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अहमद साज से। अहमद, आगाह कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बर्क एसोसिएशन की जानिब से सुबह से ही आर्ट्स काउंसिल फैसलाबाद में जो है वो फनकारों के इलेक्शनों का जो सिलसिला था वो जारी था। जो टाइम था पोलिंग का वो 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक जो था वो जारी था। उसके बाद जो है वो गिनती का अमल जारी हुआ, तो उसके बाद जो है वो नताइज जो है वो सामने आ गए। जो शाहिद मलिक है उन्होंने जो है वो आपको बताता चलूँ 97 वोट लेके जो है वो नए चेयरमैन जो है वो बर्क एसोसिएशन के जो है वो मुंतखब हो गए हैं। उनके साथ जो मुकाबले में थी वो थे जो दूसरी जानिब रियाज अंजम, जो कि सिर्फ 36 वोट ले चुके हैं। अगर हम साथ ही साथ बात करें वाइस चेयरमैन की, तो वाइस चेयरमैन जो है वो जो है मलक जो शाहिद हाशमी जो है उन्होंने 98 वोट लिए, जबकि जो उनके मुकाबले में जो है वो सोनिया अली जो है वो सिर्फ 36 वोट हासिल कर सकी। इसी तरह मैं आपको बताता चलूँ इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी की बात करें तो गुलपरी ने जो है वो 76 वोट लेके जो है कामयाबी हासिल की। उनके जो मुकाबले में इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी जो बाबर दीवाना सिर्फ 52 वोट ले सके। इसी वाले से जब जो है रिजल्ट अनाउंस हुए तो जीतने वाले उम्मीदवार की जानिब से जो है वो डोल की थाप पे जो है बंगड़े भी डाले गए।
इसी वाले से हमारे पास जो है वो शाद मलक मौजूद हैं, जो नए चेयरमैन जो हैं, जो चेयरमैन जो मुंतखब हुए हैं उनसे पूछती हैं। अच्छा ये बताइएगा, आपने बर्क एसोसिएशन के नए जो हैं वाइस चेयरमैन जो है मुंतखब हुए हैं, क्या कहती हैं इस हवाले से? जी बड़ी खुशी है, मैं वाइस चेयरमैन पे खड़ा था और माशाल्लाह बड़ी अच्छी वोटिंग से जीता हूँ और लोगों ने बड़ा प्यार किया, बड़ी मोहब्बत की। इन सब का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि इतनी बड़ी इज्जत मिली। बर्क एसोसिएशन का मैं इस वक्त वाइस चेयरमैन हूँ। ये बताइएगा कि मतलब आप अपनी कम्युनिटी के लिए आगे क्या बेहतरी लाएंगे? आपको एक ओहदा मिला है, लोगों ने आपको, फनकारों ने आपको एतमाद करके आपको जिताया, तो उनके लिए क्या आप करेंगे? जी जो जूनियर है वो उनकी हमेशा ख्वाहिश रहती है काम करने की, तो जितने भी पाकिस्तान में, पंजाब में, फैसलाबाद में जूनियर हैं, मेरी कोशिश है कि जहाँ जहाँ भी वो काम नहीं कर रहे वहाँ पे वो काम करेंगे। जिस थिएटर में जूनियर को अंदर नहीं जाने देते, हम कोशिश करेंगे ऐसे कार्ड इशू करें ताकि वो थिएटर में बासानी जा सकें, ताकि अपनी पहचान करवा सकें। हाँ जी बिल्कुल। मैं आपको साथ साथ दूसरी जानिब ये भी बताता चलूँ, टोटल जो उम्मीदवार थे, जो 143 जो थे वो फनकार जो थे वो रजिस्टर्ड थे, जिसमें से सिर्फ जो है वो 136 वोट जो हैं वो कास्ट किए गए, जो 4 जो हैं वो बिला मुकाबला जो हैं वो सीटों पर जो है। अहमद साहब बहुत शुक्रिया आपका। जीसी विमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन फैसलाबाद में फैज़ अहमद फैज़ की शख्सियत पर सेमिनार का इनेकाद किया गया। फैज़ अहमद फैज़ की शख्सियत और वलवला अंगेज शायरी के हवाले से जीसी वुमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन में सेमिनार मुनक्कद किया गया। सेमिनार अंग्रेजी और उर्दू डिपार्टमेंट के ज़ेर सदारत हुआ। असाज़ा समेत तालबात ने शिरकत की। इस मौका पर फैज़ अहमद फैज़ के नवासे अली मेहदी हाशमी का कहना था कि जीसी वुमेन ने आज भी फैज़ अहमद फैज़ की याद को ताज़ा कर दिया। जो परफॉर्मेंसेज की गई वो फैज़ अहमद की शायरी की अक्कासी थी। पूरे साल यहाँ पे फैज़ साहब के काम पे, फैज़ साहब की ज़िंदगी पे, फैज़ साहब की जो सियासी जो जद्दोजहद इसके हवाले से कुछ ना कुछ काम होता रहता है, प्रोग्राम होते रहते हैं। 13 फरवरी तो फैज़ साहब की सालगिरह होती है, तो अब ये आज का जो प्रोग्राम था, ये फैज़ साहब की जो अभी सालगिरह गुजरी है उसके हवाले से यहाँ पे एक तकरीब रखी गई थी, जिसपे फैज़ साहब की शायरी पे, फैज़ साहब की जद्दोजहद पे बात हुई। बहुत बड़ी तादाद में तालबात ने शिरकत की। अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, जो दरिया झूम के उठे हैं तिनको से न डाले जाएंगे। सेमिनार में चेयरपर्सन इंग्लिश डिपार्टमेंट जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद मजहर हयात, एग्जेक्टिव मेंबर चैम्बर ऑफ कॉमर्स रुखसाना कौसर, शाहिदा राय ने खसूसी शिरकत की। तालबात ने फैज़ अहमद फैज़ की मशहूर जमाना गजल हम देखेंगे और परफॉर्मेंस पेश की। दिले नामीद तो नहीं, नाकाम ही तो है, लंबी है गम की शाम मगर शाम ही तो है। सेमिनार के शुरका ने इनकलाबी शायर फैज़ अहमद फैज़ को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन उस्मान ताज के साथ फसी नकवी, सिटी 41 फैसलाबाद। दूसरी जानिब गवर्नमेंट अयूब रिसर्च गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में साइंस और आर्ट्स मॉडल के नुमाइश का एहतमाम किया गया। गवर्नमेंट अयूब रिसर्च गर्ल्स कॉलेज फैसलाबाद में साइंस और आर्ट्स मॉडल नुमाइश का इनेकाद किया गया, जिसमें फाइन आर्ट्स, कंप्यूटर, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी की तालिबात ने मॉडल्स पेश किए। तालिबात ने मुख्तलिफ मौज़ूआत पर वर्किंग मॉडल्स बनाकर भी पेश किए। मैं आज अपनी फाइन आर्ट्स की एग्जीबिशन को प्रेजेंट कर रही हूँ। इसमें बेसिकली मैंने हमारा जो वो था, एक थीम मिला हुआ था टेक्सचर आर्ट को, तो हमने उसको टेक्सचर आर्ट को लेके उसमें कैलीग्राफी में, एम्ब्रॉयडरी में जो आर्ट्स है, हमें क्रिएटिव अपने सेल्फ आउट से हमें मिल सकते थे आइडियाज़, उससे लेके हमने काफ़ी क्रिएटिविटीज़ हमने चीज़ें बनाई। उनको अच्छा लग रहा है हमारी बच्चों की मेहनत देख के, वो हमें अप्रिशिएट करके जा रहे हैं। हमें भी अच्छा लग रहा है कि कोई आ रहा है, हमारी चीज़ों को पसंद करके जा रहा है और हमारी चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट किया जा रहा है, जिसमें हमने बहुत सारी मेहनत भी लगी है। फाइन आर्ट्स की तालिबात ने होम इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट को आर्ट वर्क से सजा रखा था। तालिबात ने पेंटिंग समेत मुख्तलिफ फन पारे बनाकर भी पेश किए। बच्चे किताबों से इतना नहीं सीखते जितना प्रैक्टिकल से सीखते हैं, तो इसीलिए हमने उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया किया है कि वो अपने अंदर छुपी हुई सलाहियतों को पुरकार लाते हुए दुनिया को बता सकें कि हम भी कुछ कर सकते हैं। बच्चों को किताबों से उठा के, एक तो बच्चों को मतलब कि एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ में जब हम लेके आते हैं तो बच्चे थोड़े से फ्रेश भी हो जाते हैं। एक किताबों में पढ़ाई कर के बच्चे तंग आ जाते हैं, तो जिस चीज़ें जो हैं बच्चों को करवानी चाहिए, मतलब मैं कहती हूँ कि महीने में एक दिन इनका ये होना चाहिए। प्रिंसिपल डॉक्टर सायरा खानम, डॉक्टर मुनीर जहां, प्रिंसिपल गवर्नमेंट साइंस कॉलेज डॉक्टर शौकत अली शाह, मिसिस शौकत और प्रिंसिपल कॉमर्स कॉलेज मोहम्मद इकबाल ने नुमाइश का दौरा किया और तलबात के शानदार काम पर खूब दाद दी। आज हमारे कॉलेज में एग्जीबिशन थी, तो मैंने मॉडल बनाया दी एनिमल सेल का। सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। अर्थ का कलाम मॉडल एक ऐसा मॉडल है जो हम इसे पहाड़ी सिलसिलों में, पहाड़ी इलाकों में बहुत ज़्यादा ज़लज़ले आते हैं, वहाँ पे जानी और माली नुकसानात होते हैं। हम उन नुकसानात से बचने के लिए हमने ये मॉडल को प्रेजेंट किया है, इसको डिज़ाइन किया है ताकि हम बहुत से नुकसानात से बच
बच सके। मैं अपना ये प्रोजेक्ट रिप्रेजेंट कर रही हूँ जो कि सर्विंग रोबोट के बारे में है। सर्विंग रोबोट का बेसिकली आइडिया हमने चाइना और जापान से लिया था, क्योंकि ये चीज़ ऑलरेडी इंट्रोड्यूस्ड है चाइना और जापान के अंदर। तो क्योंकि ऐसी चीज़ों का पाकिस्तान पे भी हक है, तो पाकिस्तान को भी ये चीज़ें चाहिए, तो हमने उसे लॉ लेवल पे अपने एग्जीबिशन के अंदर शो किया है। डॉक्टर अफ़ाफ इब्राहिम, मारिया खालिद, डॉक्टर इरफान मंजूर समेत मुख्तलिफ कॉलेजेस के असातिज़ा ने जजेस के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। तालिबात को बेहतरीन मॉडल्स बनाने पर इनामात से भी नवाजा गया। कैमरामैन मोहम्मद वक्कास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। एजुकेशन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में जश्न बहारा फूलों की नुमाइश सजाई गई, जिसमें 12 शोबों के तलबा ने खूबसूरत स्टॉल सजाए। एजुकेशन यूनिवर्सिटी फैसलाबाद कैंपस में जश्न बहारा फूलों की नुमाइश सजाई गई, जिसमें यूनिवर्सिटी के 12 शोबों के तलबा ने फूलों के खूबसूरत स्टॉल सजाए। ये फ्लावर एग्जीबिशन है। फ्लावर एग्जीबिशन तो वैसे स्प्रिंग के हवाले से आपको नज़र आ रहा होगा कि स्प्रिंग के हवाले से जैसे कि फूलों की आमद है, तो इस हवाले से ये फ्लोरिडा कल्चर इवेंट यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया गया है। अब देखें, अब मौसम की वजह से इस मार्च में ही गर्मी कितनी हो गई है, तो इन्वायरमेंट को कंट्रोल करने के लिए हमें इन चीज़ों की अवेयरनेस ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाएं ताकि इन्वायरमेंट हमें अच्छा रहे, हमारी सेहत के लिए अच्छा रहे। ये बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं, हेल्दी एक्टिविटीज़ हैं, बिकॉज आपको स्टडी के साथ साथ ये एक्टिविटीज़ लाजमी होती हैं। इनसे माइंड भी फ्रेश होता है, तो आप एक्टिविटीज़ की तरफ भी आते हैं और आप ग्रो करते हैं। तलबा ने बहार की मुनासबत से चारों तरफ फूल सजाकर यूनिवर्सिटी की खूबसूरती को मजीद बढ़ा दिया। प्रिंसिपल शाहिद इकबाल, इंचार्ज फूल नुमाइश मोहम्मद शाहिद व दीगर साथिजा ने नुमाइश का दौरा किया। प्रिंसिपल शाहिद इकबाल का कहना था, स्पोर्ट्स वीक मनाया गया और फूलों की नुमाइश में भी मुकाबले के रुझान को फरोग दिया है। ये बच्चों की डिमांड पर ये इवेंट हमने ऑर्गेनाइज किया है। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के CRs, GRs, इन बच्चों में शौक है, यंग जनरेशन है, इन्होंने आके मुझे बार बार रिक्वेस्ट की कि हम ये इवेंट ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं, और ये टीचर्स और स्टूडेंट्स अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से ये जो नायाब पौधे हैं, फ्लावरी प्लांट्स, ये ढूंढ के लाए हैं, और स्प्रिंग सीजन की ये कंटिन्यूएशन में है। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स का अब इंटर डिपार्टमेंटल कंपटीशन भी है, इनके लिए हमने प्राइजेस का भी इंतजाम किया है। तलबा की बड़ी तादाद भी फूलों की नुमाइश देखने पहुंची और दीदा जेब मनाजर को सेल्फियों में महफूज करते नजर आए। कैमरामैन मोहम्मद वकास के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। जश्न बहारा के सिलसिले में FTA के ज़रिए एहतमाम तीसरी बैनुल सूबाई चकबॉल चैंपियनशिप का एहतमाम किया गया। FDA के ज़ेरे इंतजाम जारी तीसरी बैनुल-सूबाई चुकबाल चैंपियनशिप का फाइनल मैच क्रिसेंट स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में पंजाब कलर्स और KPK की टीमों के माबैन खेला गया, जहां 5 स्कोर के इजाफे से KP की टीम ने तीसरी बैनुल-सूबाई चुकबाल चैंपियनशिप अपने नाम कर ली। कमिश्नर सिल्वत सईद ने FDA अफसरान के हमरा कामयाब टीमों में इनामात तकसीम किए। चैंपियनशिप्स आप देख रहे हैं, जैसे ये 3rd चैंपियनशिप थी, तो इंशाल्लाह पूरी डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन और डिस्ट्रिक्ट की हमारी इंतजामिया वो चुकबॉल के साथ एसोसिएटेड रहेगी, और इंशाल्लाह हम नेशनल लेवल की गेम के लिए तैयारी कर रहे हैं, और फिर इंशाल्लाह हम अपने प्लेयर्स को इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जाएंगे। तीसरी चुकबाल चैंपियनशिप में पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सिंध, इस्लामाबाद, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद जम्मू कश्मीर की टीमों ने हिस्सा लिया। आज़ाद जम्मू कश्मीर की टीम ने तीसरी पोजीशन हासिल की। खिलाड़ियों का कहना था कि फैसलाबाद इंतजामिया ने चुकबाल की सरबराही करके दिल जीत लिए हैं। कमिश्नर सिल्वत सईद ने DG FDA मोहम्मद आसिफ चौधरी की जानिब से चुकबाल चैंपियनशिप के इनेकाद को सराहा। उनका कहना था कि ज़िले इंतजामिया खेल के फरोग के लिए चुकबाल फेडरेशन की हर मुमकिन मदद करेगी। कैमरामैन मोहम्मद उस्मान के साथ वक्कास अहमद बेग, City 41, फैसलाबाद। इस रिपोर्ट के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।